الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد بھائیو، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارا تراویح میں سورۃ النساء چل رہا ہے، لیکن سورۃ البقرہ ہی کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ان کی تفسیر کرنا اور ان کے بارے میں بتانا ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ ابھی رمضان المبارک کے ابتدائی یعنی شروعات کے دنوں میں ہیں، اسی لیے کچھ آیتیں ایسی ہیں انشاءاللہ ان کی صرف چند منٹوں میں تفسیر کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے ایک بات یاد رکھ لیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہم لوگ جتنے نیکیاں کریں گے، جتنے صدقات و خیرات کریں گے، جتنے بھلائی کے کام کریں گے، اللہ رب العالمین اس میں یقیناً ثواب عطا کرے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان ہی میں صدقہ و خیرات کرو، نہیں، رمضان ہی میں صرف کیا ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرو، ایسی بات نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے علاوہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صدقات و خیرات اتنا بہت زیادہ کرتے تھے، کتنا زیادہ کرتے تھے انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کی مثال ایک کسان سے اللہ رب العالمین نے دی ہے، ایک کھیتی کرنے والے سے اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے۔ اللہ کہتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے ان لوگوں کی، ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو مال خرچ کرتے ہیں اپنا، فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، کمثل حبہ، ایک دانے کی مثال دی ہے اللہ رب العالمین، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانہ جب کسان زمین کے اندر بوتا ہے تو اس سے 7 بالیاں آتی ہیں، یعنی بھٹا وغیرہ جو آتا ہے نا، اس کی مثال دی ہے، کمثل حبۃ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ڈالی یعنی ہر بالی کو 100 دانے اگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب العالمین کی راہ میں 1 روپیہ اگر خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو 100 کے برابر اجر دینے والا ہے، 100 کے برابر اللہ رب العالمین اس کو ثواب دینے والا ہے، یہاں تک کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر ہماری نیت اچھی ہو، اگر ہماری نیت صاف ہو، اگر ہماری نیت میں اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ بڑا کر دیتا ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر جب بندہ اپنے دل کے اندر نیکی اور برائی ایک بندے کی لکھ دی جاتی ہے، جب بندہ برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن بعد میں اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے، ڈر کر اس برائی کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے۔ اگر بندہ برائی کرنے کی خواہش کرتا ہے، بعد میں معافی نہیں مانگتا، اگر برائی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں کتنی برائی لکھتا ہے، صرف 1 برائی کے برابر اللہ رب العالمین ایک سزا اس کی لکھتا ہے۔ اگر بندہ نیکی کی خواہش کرتا ہے، نیکی کی امید کرتا ہے، بعد میں حالات اس کے ایسے آئے، کچھ اسباب ایسے آئے کہ وہ آدمی وہ نیکی کا کام نہیں کر سکا، وہ نیکی کا کام میں آگے نہیں بڑھ سکا، تو بھی اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اگر بندہ نیکی کا ارادہ کر کے مضبوط ارادے کے ساتھ بیٹھ کے اگر اس نیکی کو کر لیتا ہے تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 10 سے 700 گناہ لکھتا ہے۔
यानी 10 नेकियां लिखता है। अगर रब्बुल आलमीन ने चाहा तो उसको बढ़ाते हुए 700 तक उसके दर्जात को अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद फरमाता है। तो इससे एक बात ये मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा रहम और शफकत वाला है। अब कभी कभी कोई ये बोल सकता है कि अल्लाह कितना भी गुनाह करो, कितनी भी बुराइयां करो, एक ही गुनाह लिखता है ना, चलो गुनाह पर गुनाह करते जाएंगे। अगर ऐसा करेंगे, कल क़यामत के दिन ऐसा होगा, हम लोग कितने भी नेकियां करो, कितने भी भलाइयां करो, उसके बावजूद भी हमारे नेकियों का पलड़ा और बुराइयों का पलड़ा एक जगह रख दिया जाएगा इंसान का, तो भी उसके बुराइयों का पलड़ा ही भारी होगा, उसकी नेकियों का पलड़ा कभी भी भारी नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कभी एक पर 10 नेकियां हैं, 100 नेकियां हैं, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो जन्नत मिलेगी, अल्लाह गुनाह माफ करेगा। इतने सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन दर्जात रखने के बावजूद भी हमारे गुनाहों का पलड़ा ही भारी होगा, लेकिन हमारी नेकियों का पलड़ा भारी नहीं होगा। इसीलिए ये नहीं समझना चलो एक गुनाह करे तो क्या अल्लाह एक ही गुनाह लिखता, एक ही बुराई अल्लाह तबारक व तआला लिखता। अगर ऐसा करेंगे तो फिर बहुत भयानक अंजाम होगा। गुनाह हो भी जाए तो रब्बुल आलमीन से माफी मांगना चाहिए। देखिए ये सदका व खैरात, इसकी फजीलत में एक ही बात ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के महीने में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आंधी की तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका व खैरात करते थे। आंधी का जिक्र क्यों किया गया है? तेज आंधी, अगर जब बहुत जोरदार हवा आती है तो किसी का भी घर नहीं छोड़ती है, किसी की भी खिड़की नहीं छोड़ती है, हर घर के अंदर वो तेज हवा दाखिल जरूर होती है। तो मालूम यह हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में किसी भी गरीब, कोई भी गरीब ऐसा नहीं रहता था कि आग का सदका उसके पास पहुंचता था। मतलब क्या हुआ, कोई भी जरूरतमंद है तो उस जरूरतमंद तक उसकी जरूरत का सामान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा दिया करते थे। इतना ही नहीं, जो बंदा सदका व खैरात करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में अपना माल खर्च करता है, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए क्या करता है, कब्र की आग को ठंडा करता है, कब्र की आग को ठंडा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सदकात व खैरात करता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को कब्र के अजाब से बचा लेता है। सुभान अल्लाह। कितना भी हो, कितना भी हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको जितना दिया है, हमारी ताकत जितनी है, हमारी इस्तिताअत जितनी है, हमारी ताकत इस्तिताअत के मुताबिक अगर हम रब्बुल आलमीन के राह में माल को खर्च करेंगे तो सदका व खैरात की फजीलत में दूसरा फायदा ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको कब्र के अजाब से बचा लेगा। सुभान अल्लाह। उसके बाद यही सदका व खैरात ज्यादा से ज्यादा करते जाएंगे तो कल क़यामत के दिन, जैसा हमने कहा था कि सूरतुल बकरा और आली इमरान हमको साया करेंगे, ठीक इसी तरीके से यही सदका व खैरात उस बंदे के कल क़यामत के दिन आकर साया बनकर खड़े हो जाएंगे। हम सूरज के बिल्कुल करीब होंगे, ज्यादा से ज्यादा सदका व खैरात करने वाले होंगे, रब की राह में माल खर्च करने वाले होंगे, तो यकीनन यही सदका व खैरात, यही माल जो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करते हैं, यकीनन कल क़यामत के दिन साये की तरह आकर खड़े होंगे। अगर हम कंजूसी करेंगे, बखीली करेंगे, माल को जमा जमा कर अपने घर के अंदर रखेंगे और हमारा दिल 1 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहेगा, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल, लोगों व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में माल को खर्च करो, दो, गरीबों की मदद करो, जो बेसहारा है उनका सहारा बन जाओ, यतीमों की किफालत करने लग जाओ, बेवाओं की हमदर्दी करने लग जाओ। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, कब तक? मिन क़ब्ली अन यअतिया अहदकुमुल मौत, तुम्हारी मौत आने से पहले, तुम्हारी आंख बंद हो जाने से पहले, तुम्हारी सांस बंद होने से पहले तुमको चाहिए कि तुम क्या करो? अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में माल खर्च करो। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, मरने के बाद आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिक्वेस्ट करेगा,
लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फअसद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। ऐ अल्लाह एक चांस दे, ऐ अल्लाह एक मर्तबा फिर से तू मुझे दोबारा जिंदगी दे, फअसद्दक़ मैं कुछ भी नहीं करूंगा, फअसद्दक़ सदका व खैरात करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी लंबी उम्र दिया, इतनी लंबी जिंदगी दी, उस जिंदगी के अंदर सेहत दिया, माल दिया, दौलत दिया, सब कुछ दिया। उतना कुछ देने के बावजूद भी बंदा उसको गनीमत समझा नहीं है। मरने के बाद मरते वक्त अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहा है, अल्लाह एक चांस दे मौलाए करीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे देगा? फअसद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह कहता है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी की मौत को लिख देता है तो वक्त मुकर्ररा पर आ पहुंचती है, ना तो एक सेकंड आगे होता है, ना तो एक सेकंड पीछे होता है। जितना देना था, जितना कुछ करना था, उसको तू अभी करना था। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे दोबारा चांस नहीं देगा। देखिए हम लोग बड़ी इसके साथ कहते हैं कि हम सहाबा के मानने वाले हैं, हम सहाबा की तरह जिंदगी गुजारने वाले हैं, सहाबा हमारे, बहुत ढोंग रचते हैं हम लोग। क्या हम लोग सहाबा की तरह माल खर्च करने वाले हैं? क्या हम लोग सहाबा की तरह माल खर्च करने वाले हैं? एक मर्तबा जैसे उसरा यानी तबूक का मौका था, तबूक का मौका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तबूक के लिए सारे सहाबा को बुलाकर बोले, बड़े अफसोस के साथ कहे कि जंग के लिए तैयारी भी करना है लेकिन माल कुछ भी नहीं है, सामान जंग के लिए कुछ भी नहीं है। आप लोगों में से कोई कुछ हो तो लाकर जमा कर दो। तो सबसे पहले कौन उठकर जाते हैं? सबसे पहले उठकर जाने वाले हजरत उस्मान इब्न अफ्फान रज़ियल्लाहु अन्हु जाकर 700 ऊंट लाकर देते हैं। कितने? 700 ऊंट लाकर देते हैं और 300 घोड़े लाकर देते हैं। इतना कुछ लाकर देने के बावजूद भी तसल्ली नहीं हुई। 700 घोड़े, 700 ऊंट और 300 घोड़े लाकर अल्लाह के रसूल के दरबार में देते हैं, चले जाते हैं, तसल्ली नहीं हुई। गए घर में जाने के बाद कपड़ा उठाए तो कपड़ा उठाने के पास उस कपड़े के नीचे पैसे थे, दिरहम थे, दिरहम 1000 दिरहम उठाकर अल्लाह के नबी के दरबार में लाकर देते हैं। लो अल्लाह के नबी ये भी खर्च करो, अल्लाह के नबी ले लो ये भी खर्च करो। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उठा कर गिनते हैं, देखते हैं, गिनते हैं, देखते हैं, खुशी के मारे कहते हैं मा अज़र्रा इब्न उस्मान, मा अज़र्रा उस्मान इब्न अफ्फान। आज के दिन उस्मान बिन अफ्फान यानी अफ्फान का बेटा उस्मान कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अल्लाह तबारक व तआला की माफी उसके लिए है। कितनी बड़ी फजीलत है अल्लाह के राह में। आज हम 100 रुपए दे दिए तो बाद में बार बार सोचते 100 रुपए चले गए, अरे आज 1000 रुपए चले गए, आज क्या होता कि मेरी एक महीने की जिंदगी कैसा होती कि एक महीने की जिंदगी में कैसा गुजारना। यहाँ पर 700 ऊंट, अल्लाह अकबर, कितने बड़े मालदार होंगे, थोड़ी देर सोचिए। 700 ऊंट, 300 घोड़े और साथ ही साथ 1000 दिरहम लाकर देते हैं। एक दिरहम के बदले में एक बकरी आया करती थी। जब एक दिरहम में एक बकरी आती थी, आज एक बकरी की कीमत 15,000, 10,000, 12,000 आसमान छू जाती। अब 1000 दीनार को अगर हिसाब डालेंगे तो कितनी बकरियां, आदमी कितना बड़ा मालदार बन जाएगा। सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं, एक मर्तबा उम्मु दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आकर उनको असर के वक्त में 1000 दिरहम लाकर देती है। अब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा चाहती तो अपने पास रख लेती थी, खर्च कर सकती थी, लेकिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या किया? सबको बुलाकर, कोई भी नहीं बचा, ढूंढ ढूंढ कर सबको बुलाकर खर्च करके पूरा 1000 दिरहम खत्म कर दिए। उम्मु दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अय आयशा, आप सुबह से भूखे हो, रोजे में हो, इफ्तारी का वक्त हो रहा है, कम से कम 1 दिरहम आप आपके पास रख ली थी तो कितना अच्छा होता। 1 दिरहम आप अपने पास रख लेती तो कितना अच्छा होता। आप उस 1 दिरहम से इफ्तारी का सामान लाकर इफ्तारी कर सकती थी। हजरत आयशा को जब याद आता, अरे अब याद दिलाते क्या आप, अगर बोलते तो मैं भी 1 दिरहम अपने हिस्से में रख लेती थी। सुभान अल्लाह। जितना माल अल्लाह देता था वो सारे का सारा खर्च किया करते थे, सारे का सारा लुटा दिया करते थे, दे दिया करते थे। लेकिन भाइयों आज भी बहुत सारे लोग हैं अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले हैं, देने वाले हैं, अपने माल को लुटाने वाले हैं। कुछ लोग यकीनन अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं कि अगर एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को मालूम भी नहीं हो रहा है, रात के अंधेरे में जाकर लोगों की, गरीबों की मदद किया कर रहे हैं।
अल्लाह को राजी करने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं दे एक हाथ से तो सबको दिखना, हाँ भाई मैं दिया, आज 1000 रुपए दिया, देखो। अब लोग बोलना भाई कितना बड़ा मालदार है जी ने 1000 रुपए दिया, देखो जी ने, वाह इन्हें 5000 दिया, देखने में तो लोगों का दिल मर जाता। कुछ लोग कभी कभी ऐसा भी हुआ करता है कि लोगों को इसलिए बता कर दिया करते हैं कि अगर मैं आज 5000 किसी गरीब की मदद करूंगा 5000 से तो दूसरा आदमी 10,000 देगा। लेकिन दौर वैसा नहीं है, जमाना वैसा नहीं है। लोग जल जाते हैं, लोग दिल के अंदर घुटन महसूस करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च करते हैं। ऐसे लोगों का अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना तो माल पसंद है, ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनका सदका पसंद है, कुछ भी नहीं पसंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के दिल को देखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के दिल को देखता है। ला यंजुरुल्लाह इला सुवरिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सूरतों को नहीं देखता। वलाकिन यंजुरु इला अजसामिकुम, तुम्हारे जिस्मों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देखता। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह बस अगर देखता है तो तुम्हारे दिल को देखता है। तुम्हारे दिल को देखता है कि मेरा बंदा किसको राजी करने के लिए, किसको खुश करने के लिए, किसको राजी करने के लिए मेरा बंदा माल खर्च कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये देखता है। इसीलिए अभी से हम रमजान में दाखिल हुए हैं, 4 ही दिन गुजर चुके हैं, बहुत सारे दिन हैं, जैसे 25 दिन हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की मदद किया करते थे, जैसे सहाबा इकराम अपना पूरा माल खर्च किया करते थे, हमको भी चाहिए अल्लाह जितना दिया है उसमें से सदका व खैरात करने की कोशिश करें। कम से कम हमारे पास माल नहीं है, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, कोई मसला नहीं, डरने की जरूरत नहीं। जो आदमी प्यासा है ना, प्यासा, उसको पानी पिला दीजिए, बस यही अफजल सदका है। सबसे बेहतरीन सदका यही है कि एक प्यासे को पानी पिला लीजिए, उसके दिल की दुआ ले लीजिए। अगर अल्लाह माल दिया है तो यतीमों की किफालत कीजिए। अगर कोई जिसके माँ बाप बालिग होने से पहले बच्चे के इंतकाल हो जाते हैं तो या तो उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले लीजिए, या तो उसकी फीस की जिम्मेदारी ले लीजिए, या उसकी जिंदगी में कुछ भी उसकी एक जिम्मेदारी ले लीजिए और उसको चलाते जाइए। अल्लाह के नबी ने कहा अना वकाफिलुल यतीमी, सबको मालूम है, फिल जन्नति हाकज़ा, मैं और यतीम की किफालत करने वाला कल जन्नत में कैसे होंगे? ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। ऐसे मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत के अंदर एक साथ रहेंगे। ये मामूली बात नहीं है। इसीलिए अब भी हमारे पास वक्त है, अल्लाह जितना माल दिया है उसको खर्च करते जाएं। यकीनन हमारे माल में इजाफा होगा, हमारे माल में अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ोतरी करेगा, बरकतें अता करेगा। आदमी ये समझता है कि मेरा माल घटता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसके माल को बढ़ाता है। उसके माल को अल्लाह तबारक व तआला घटाता नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला उसके माल को बढ़ाता है। दुनिया के अंदर भी कामयाबी देता है, आखिरत के अंदर तो सुभान अल्लाह साया बनकर आता है, जहन्नम की आग से बचा दिया जाता है, खबर के अजाब से बचा दिया जाता है। ये मामूली चीज नहीं है। इसी के साथ साथ इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को माल खर्च करने या सदका करने की बहुत ज्यादा तरगीब दिया करते थे। या माशरन निसा, ऐ औरतों, ऐ माशरे की औरतों, तुम्हें चाहिए तसद्दकना, तुमको चाहिए कि तुम क्या करो? सदका व खैरात करो, ज्यादा से ज्यादा सदका व खैरात किया करें। इसीलिए औरतों को चाहिए, माँ और बहनों को चाहिए, आपके घर के पास कोई भी आए, हाथ फैलाकर अगर मांगता है, आपके पास अगर पूछता है तो उसको लानत ना करें, उसको गालियां ना दें, उसको झिड़का कर ना भेजें, उसके ऊपर गुस्सा ना करें। आपकी इस्तेताअत है, आपकी ताकत है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए कुछ उसको देकर भेज दें, अगर नहीं है तो खामोश हो जाएं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने आगे ये भी कहा, ऐ औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा सदका करो। तो औरतों ने कहा क्यों अल्लाह के नबी, औरतों ही को तुमने क्यों कहा है? तो अल्लाह के नबी ने कहा तकसुरन लाना, तुम्हारा काम यही है कि तुम ज्यादा से ज्यादा लान तान करते हो, गालियां अपनी जबान से देते हो, अपने शोहरों की नाफरमानी करते हो। अगर सदका व खैरात दोगे, ज्यादा से ज्यादा सदका करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन आपको जहन्नम के आग से बचा लेगा। ये मामूली चीज नहीं है। इसीलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम रब्बुल आलमीन की राह में माल खर्च करें। देखिए मदद बंदों की होती है, अपने भाइयों की मदद होती है, लेकिन अल्लाह कहता है युनफिकु फी सबीलिल्लाह, तुम माल खर्च करो किसकी राह में? अल्लाह की राह में।
माल खर्च राह में अल्लाह की हो रहा है, लेकिन मदद हमारे भाइयों की हो रही है, मदद अल्लाह के बंदों की हो रही है। बदले में देने वाली जात, अता करने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम को तेरी राह में खूब से खूब माल खर्च करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।